Okay, good morning, class. I hope all of you have joined. Now, uh, till now we have discussed about permutations and combinations. Okay, in continuation to that, means in continuation to the topic of counting principles, we are going to discuss a new topic, that is pigeonhole principle. Okay, this thing is also used in solving the problems related to counting. Okay, so here we are going to discuss the next point, that is called to be as pigeonhole principle. Okay, and after this we will start the next topic, that is probability. Okay, so here this pigeonhole principle is also, it is also used for the purpose of solving the problems based on counting. Okay, it is very fundamental. Likewise, here we are saying, if you look at this diagram, okay, in this diagram, we are considering that this is pigeon, okay, and this is called to be as pigeonholes or boxes, okay. So there are 9 pigeonholes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay. In 9 pigeonholes, we have placed 9 pigeons. Okay, we are considering this to be as one box. Okay, yeah, one pigeonhole. So therefore in one pigeonhole we have put one pigeon. So in 9 pigeonholes we have placed 9 pigeons, and since we are having 10 pigeons, so therefore this pigeon is thinking of where to place him or her. Okay, where to place this pigeon, इसमें रखें या इसमें रखें या इसमें रखें इसको, या यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, ठीक है। कहीं भी आप रखोगे तो उससे क्या होगा, देयर विल बी एटलीस्ट वन पिजन होल कंटेनिंग मोर देन वन pigeons. Okay, whenever we place this pigeon in this pigeonhole, then there will be at least one pigeonhole having more than one pigeons. Got the point? Okay, so this is the fundamental idea of this pigeonhole principle, and by this what we are concluding here, we are saying that the pigeonhole principle states that if n items are put into m containers, okay, so what is n here? According to this problem statement, what is n here as per the given diagram? So here n denote pigeons, and how many pigeons we are having? 10. So therefore, for this figure, we have n equals to 10, because we have to put 10 pigeons into m कंटेनर. तो m की वैल्यू कितनी है? 9, क्योंकि हमें इन 10 पिजन्स को 9 पिजन होल्स में प्लेस करना है, वेयर दिस n is greater than m. So 10 is greater than 9, that is also true. So the statement is at least one container must contain more than one item. So there will be at least one pigeonhole having more than one pigeons. क्योंकि आप इस 10th पिजन को जिस किसी भी पिजन होल में प्लेस करोगे, वो उससे क्या होगा कि वो पिजन होल में मोर देन वन पिजन हो जाएंगे, ठीक है। So this is the basic idea of this pigeonhole principle. Okay, and this is very useful to solve the problems based on the counting theory. Yes, any queries in this statement? I hope it is clear to all of you. बहुत ही सिंपल रूल है, आपके पास
एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में हमारे पास 9 पिजन होल्स हैं एंड वी हैव टू प्लेस 10 पिजन्स, ठीक है। तो 10 पिजन्स हैं, तो आप क्या करोगे, एक पिजन होल में एक रखोगे, तो 9 पिजन होल में हमने 9 पिजन्स को प्लेस कर दिया। अब ये जो 10th पिजन है, इसको आप जहां पे भी रखोगे, it will ensure that there will be at least one pigeonhole having more than one pigeons, ठीक है। तो ये 10th वाला जिस किसी भी पिजन होल में जाएगा, वहां पे एक से ज्यादा पिजन हो जाएंगे। गॉट दैट? So this is the basic idea of pigeonhole principle, which
Yes, it was disconnected due to some issue with Zoom app. Okay. Uh, I hope everyone is connected now. Is it audible to all of you? Yes. Okay. So we are here talking about this pigeonhole principle. Let me full screen it here. So as I have told you, whenever we want to place n items, यहाँ पे items की जगह मैं बोल रहा था कि इसको अगर हम items की जगह pigeons बोले, तो if we have to place n pigeons into m pigeonholes, ठीक है, तो आप इस डायग्राम को बता देख के बता सकते हो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 10, क्योंकि हमारे पास 10 पिजन्स हैं, और m की वैल्यू क्या है 9, क्योंकि इस कंटेनर में टोटल हमारे पास 9 पिजन होल्स अवेलेबल है, ठीक है. So according to the statement of this pigeonhole principle, we are saying that at least one pigeonhole will have more than one pigeons. तो कंटेनर को हम पिजन होल से रिप्लेस कर रहे हैं और आइटम्स को हम पिजन से रिप्लेस कर रहे हैं. तो यू कैन क्लियरली विजुअलाइज this particular statement from this diagram. Got that? Yes, any confusion? You can ask. Anyone? Is it okay? तो यहाँ इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू है हमारे पास 10, क्योंकि हमें 10 पिजन्स को प्लेस करना है, और m की वैल्यू है 9, क्योंकि हमारे पास 9 पिजन होल्स हैं या 9 कंटेनर्स हैं, ठीक है. तो जैसे ही हम 10th को डालेंगे किसी एक पिजन होल में, तो उसमें जो है एक से ज़्यादा पिजन्स हो जाएंगे. तो दिस इज द स्टेटमेंट, at least one container must contain more than one item. Got that? Okay, this thing is very useful in order to solve the problems based on counting principle. Okay, how? तो इसी को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे बोल रहे हैं, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड n प्लस वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब पिजन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, आर प्लेस्ड इनटू n बॉक्सेस, बॉक्सेस का मतलब पिजन होल है, देन देयर विल बी एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग टू और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. तो इसी को हम दूसरे तरीके से बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास n प्लस वन या मोर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें n बॉक्सेस में प्लेस करना है, तो देन देयर विल बी एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग टू और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. जैसे पिछले डायग्राम से अगर हम इसको कोरिलेट करें तो n की वैल्यू 9 है, n प्लस वन की वैल्यू 10 है. 9 बॉक्सेस में अगर हमने 10 पिजन्स को प्लेस किया तो एट लीस्ट वन बॉक्स विल कंटेन मोर टू और मोर देन टू पिजन्स. जैसे कि अगर हमने 10 लिया था, अगर हमने 11 पिजन लिया होता तो क्या होता? ओके, अगर हमने यहाँ पे 10 की जगह 11 पिजन लिया होता और बॉक्सेज हमारे पास 9 ही होते तो क्या होता? देयर विल बी एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग टू और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट और टू और मोर ऑफ द पिजन्स. क्योंकि अगर 11 है आपके पास तो 9 को तो आप एक एक में प्लेस कर सकते हो, लेकिन जो रिमेनिंग 2 है आप किसी एक में भी रख सकते हो और किसी 2 में भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है. तो ये एंश्योर हो गया कि एटलीस्ट वन बॉक्स तो होगा जिसमें 2 या 2 से अधिक पिजन होंगे. 2 कब होगा? जब जो 2 एक्स्ट्रा हैं उनको हम एक एक करके बॉक्सेज में रिपीट करें, ठीक है. और 2 से ज्यादा कब होगा? मतलब 3 कब होगा?
जब हम जो दो एक्स्ट्रा थे उन दोनों को ही एक ही बॉक्स में डाल दें। देखो इस डायग्राम को देखो, अगर हमारे पास 10 पिजन्स हैं तो इस 10th को आप जहां पे भी प्लेस करोगे उसमें 2 पिजन्स हो जाएंगे। अगर ये 11th पिजन होता, अगर हमारे पास टोटल 11 पिजन होते तो उस केस में 2 पिजन को प्लेस करने के लिए आपके पास 2 तरीका है, या तो आप एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो या आप दोनों को एक ही में डाल दो। ठीक है, तो अगर हम दोनों को एक ही में डाल देंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, मान लो इसमें डाल दिया तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 पिजन्स। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट देयर विल बी एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग 2 और मोर देन दैट pigeons or items. Okay, so this is the statement of pigeonhole principle. It says that if n is a positive integer and n plus 1 or more objects are placed into n boxes, then there will be at least one box containing 2 or more of the objects. ठीक है, तो मोर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मोर का मतलब ये है कि जैसे ही n प्लस 1 लेते हैं तब तो 2 होगा, लेकिन n प्लस 1 से ज्यादा लेते हैं तो 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। लाइकवाइज 3 3 कब होगा, जब हमारे पास 9 बॉक्सेज हैं और 11 पिजन्स हैं। 4 कब होगा, जब हमारे पास 12 पिजन्स हैं और 9 बॉक्सेज हैं। ठीक है, तो 9 को तो 9 डिफरेंट में डाल दिया, जो रिमेनिंग 3 है आप उसको एक में भी डाल सकते हो, तो एक में डालोगे तो एक बॉक्स में कितने हो जाएंगे, 4। गॉट दैट? So this is called to be as pigeonhole principle. Let us say how it is being used. So here we are taking some problems. Okay, look at this. This is the problem statement. Suppose a class contains 13 students. Then at least 2 students were born in same month. Okay, अगर किसी क्लास में 13 बच्चे हैं तो उसमें से कम 2 बच्चे, 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सेम मंथ बॉर्न होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ईयर है वो टोटल उसमें 12 मंथ ही होते हैं। तो एट द मैक्स क्या हो सकता है, जो 12 है वो 12 डिफरेंट मंथ के हैं, लेकिन जैसे ही 13th आया तो वो किसी न किसी मंथ में तो रिपीट होगा, क्योंकि मंथ तो हमारे पास 12 ही है। ओके, so this is one example where we are applying this pigeonhole principle. This is but obvious, लेकिन इसको हम further extend करते हैं and that is known to be as extended pigeonhole principle, and that is of very much importance. ठीक है, so that's why here this is one example where we have applied here the concept of pigeonhole principle. यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो पिजन की तरह काम कर रहे हैं और जो मंथ्स हैं वो पिजन होल की तरह काम कर रहे हैं। तो हमारे पास 12 पिजन होल्स हैं और 13 पिजन्स हैं, तो 12 पिजन होल में 12 पिजन को तो आप रख सकते हो, लेकिन जैसे ही 13th पिजन आएगा उसको किसी न किसी एक में रिपीट करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई हियर वी आर सेइंग दैट एट लीस्ट 2 ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर born in the same month. Got that? एटलीस्ट 2, एटमोस्ट हमें नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट हम बता सकते हैं कि एटलीस्ट 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है सेम मंथ का होगा। ओके, देयर इज वन मोर एग्जांपल. लेट अस से अमॉन्ग 27 इंग्लिश वर्ड्स, आपने कोई सा भी 27 वर्ड्स ले लिए, वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एक वर्ड हो गया एप्पल, बनाना, ठीक है, ग्रेप्स, तो ऐसे करके हमने कोई भी, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया जहाँ मैं फ्रूट्स का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे कोई से भी 27 वर्ड्स आप ले लो, तो दिस विल एंश्योर दैट एटलीस्ट 2 वर्ड बिगिन विथ सेम लेटर। वाई सो? क्योंकि जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेके जेड तक। तो अगर आप 27 वर्ड्स लेते हो तो ये 100% श्योर है कि कम से कम 2 वर्ड ऐसे होंगे जो सेम लेटर से स्टार्ट होंगे। तो दिस इज
द एप्लीकेशन ऑफ दिस पिजन होल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे पिजन होल क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है 26, पिजन्स कितने हैं 27। ठीक है, तो जब भी हमारे पास n+1 या n+1 से अधिक पिजन्स को n पिजन होल में प्लेस करना होता है, तो देयर विल बी एटलीस्ट वन पिजन होल हैविंग टू और मोर देन दैट पिजन्स। तो यही पिजन होल प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है जिसको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं हम। लेट अस से दिस वन, जो ग्रेड है, जो आपके एग्जामिनेशंस होते हैं उसके ग्रेड स्केल हम मान रहे हैं 0 से लेके 100 पॉइंट तक है। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मस्ट बी इन ए क्लास टू गारंटी दैट एट लीस्ट 2 स्टूडेंट रिसीव द सेम स्कोर इन द फाइनल एग्जाम। तो कोई भी स्टूडेंट जो है फाइनल एग्जाम में 0 से लेके 100 तक नंबर पा सकता है। तो हमें क्लास में कितने स्टूडेंट लेने पड़ेंगे जिससे हम ये गारंटी दे सकें कि 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका स्कोर सेम होगा। अगर स्कोर जो है आपकी 0 से लेके 100 पॉइंट में हम मेजर कर रहे हैं तो सो हियर अगेन वी आर अप्लाइंग पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल ग्रेड है वो क्या है 0 से लेके 100 तक, कितनी वैल्यूज हैं टोटल 101। ओके, इंक्लूडिंग 0 टोटल कितनी वैल्यूज हैं 0 से लेके 100 के बीच में 101, 101 नंबर्स। अब इन 101 में आपको क्या करना है कि आपको ये डिसाइड करना है कि कितने स्टूडेंट हमारे क्लास में होने चाहिए जिससे हम इस बात की गारंटी दे सकें कि 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका स्कोर सेम होगा, कम से कम एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स विल बी देयर सो दैट दे विल हैव सेम स्कोर। तो पहली चीज ये है कि एट फार हम क्या कर सकते हैं, अगर 101 स्कोर पॉइंट हैं तो 101 स्टूडेंट होंगे तो सभी का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है एट फार, अप टू दैट एक्सटेंट। ठीक है, अगर आपके पास 101 ग्रेड वैल्यूज हैं तो 101 स्टूडेंट होंगे तो उनका डिफरेंट डिफरेंट स्कोर हो सकता है। एक का स्कोर 0 होगा, एक का स्कोर 1 होगा, इसका स्कोर 2 होगा, ऐसे करके एक का स्कोर 100 होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 100 सेकेंड स्टूडेंट आता है, 102वां बच्चा आता है, तो उसका स्कोर किसी न किसी पॉइंट से रिपीट होगा, क्योंकि हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी थी 0 से लेके 100 तक वो ऑलरेडी डिस्पर्स हो चुकी है। तो जैसे ही 100 सेकेंड बच्चा आएगा, दे he or she has to obtain a grade between 0 to 100 point. Okay, so that's why here also yes, here also the answer will be 102. Okay, if we are having 102 student in a class, in that case we are sure enough to say that at least 2 student will have same score, क्योंकि जो स्कोर पॉइंट्स हैं हमारे पास कितने हैं 101। ठीक है, तो 101 स्कोर पॉइंट है, तो 102 स्टूडेंट होने चाहिए मिनिमम, इस बात की गारंटी देने के लिए कि 2 स्टूडेंट कम से कम ऐसे होंगे जिनका स्कोर सेम होगा। ठीक है, आप 2 स्टूडेंट लो तब भी ये हो सकता है कि उनका स्कोर सेम है, लेकिन 2 स्टूडेंट लेने पे आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि उनका स्कोर सेम ही होगा। ठीक है, लेकिन आप 102 स्टूडेंट लेते हो तो उस केस में ये 100% श्योर है कि हर बार जो उसमें क्लास में होगा कम से कम 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर सेम होगा। तो दिस वी आर एबल टू फाइंड आउट ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ पिजन होल। ओके, तो इस चीज को हम पिजन होल प्रिंसिपल से फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बोला गया है, टोटल ग्रेड हमारे पास 101 पॉइंट्स हैं, तो देयरफॉर मिनिमम 102 students must be there so that at least 2 students receive the same score in the final exam. ठीक है, तो दिस इज द another
example where we are utilizing this pigeonhole principle. Let us take this generalized pigeonhole principle. Okay, before moving here, any queries up to now you can ask. Yes, any doubts up to here? You can raise your hands. Anyone of you having any problem up to this point, you can ask. Yes, anyone? Reply me. वसुंधरा, आई होप इट इज क्लियर टू यू. 101 हम नहीं ले सकते क्योंकि 101 लेने से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सभी का ग्रेड डिफरेंट हो जाए. ठीक है, तो दैट्स वाई वी हैव टू टेक मिनिमम 102, 102, क्योंकि 101 हमारे पास ग्रेड वैल्यूज हैं. 0 से लेके 100 के बीच में टोटल 101 ग्रेड पॉइंट्स हैं. तो दैट्स वाई वी हैव टू टेक मिनिमम 102 स्टूडेंट्स. Okay, so moving to the next here, इसी पिजन होल प्रिंसिपल को हमने फर्दर एक्सटेंड किया. ठीक है, एंड दिस इज नोन टू बी एज एक्सटेंडेड या जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल. ठीक है, तो जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल क्या है? हियर वी आर सेइंग दैट इफ, here is the statement, if n objects are placed into k boxes. ठीक है, पहले क्या था? पहले फिक्स था क्या कि हम कितने ऑब्जेक्ट ले रहे थे? n+1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन n बॉक्सेस. पहले स्टेटमेंट हमारा पिजन होल का क्या था? इफ n+1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू n boxes, then there will be at least one box containing two or more object. ये तो आपका था पिजन होल प्रिंसिपल. अब इसी पिजन होल प्रिंसिपल को हमने जनरलाइज कर दिया. ठीक है, केवल हम टू की बात नहीं कर रहे हैं. तो नाउ वी आर सेइंग दैट इफ n ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू k boxes, then there is at least one box containing at least it is seal value of n upon k. This is upper bound. Here we are taking upper bound of n upon k objects. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है. सिंपल स्टेटमेंट है. हियर वी आर सेइंग दैट इफ n ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू k boxes, then there is at least one box containing at least upper bound of, sorry, n upon k objects. So this is the generalized pigeonhole principle statement, and from this we can further say that n equals to k into r minus 1 plus 1, क्योंकि n अपॉन k है और n अपॉन k की वैल्यू जो है ये हो गई r माइनस 1 प्लस 1. तो ये हो गया आपका n इक्वल्स टू k इंटू r माइनस 1 प्लस 1 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर satisfying the inequality that upper bound of n upon k is greater than equals to r. ठीक है, तो ये कैसे यूज हो रहा है तो ये आपको फर्दर एग्जांपल्स में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे लेट अस से ये एक प्रॉब्लम है, among 100 people find the minimum number of people who born in same month. अगर 100 लोग हैं तो उसमें
कितने लोग ऐसे हैं जो सेम मंथ बॉर्न हैं? मिनिमम, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु बॉर्न इन सेम मंथ। मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है, हम हमेशा मिनिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितने लोग हैं जो सेम मंथ में बॉर्न है? ठीक है, तो आप अगर इसको इस प्रिंसिपल पे अप्लाई करो तो n ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू k बॉक्सेस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? पीपल। n की वैल्यू क्या है? 100। बॉक्सेस क्या है? मंथ, क्योंकि वो किसी न किसी मंथ को बिलोंग करेंगे। उनका जो बॉर्न होगा, यानी उनका जो बॉर्न डेट होगा या डेट ऑफ बर्थ होगा, वो किसी न किसी मंथ को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो गई? 12। n की वैल्यू क्या हो गई? 100। तो अकॉर्डिंग टू द जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल, we can say that at least one box containing at least upper bound of 100 upon 12। तो 12 को 100 को 12 से डिवाइड करें तो ये 8 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसका अपर बाउंड कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर। अपर बाउंड का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, तो यस, जस्ट अ मिनट। Subhansi, you want to ask something? Yes, ये नहीं Subhansi. समझ में आया। मतलब अगर फॉर्मूला रट के लिखा जाए तो फिर बोल दिया जाएगा 9। चलो मैं बताता हूँ कैसे आया ये। सपोज हमारे पास ये हम 100 पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी पहले, क्या जो पहला स्टेटमेंट था पिजन होल प्रिंसिपल का, उसमें ये बताया गया कि अगर हमारे पास 13 पीपल होंगे तो दो लोग ऐसे हैं जो सेम मंथ बॉर्न हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 12 जो होंगे 12 डिफरेंट मंथ के हो सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। तो यस फर्स्ट 12 डिफरेंट मंथ के होंगे, सर। नेक्स्ट 12 वो डिफरेंट मंथ के हो सकते हैं, यस सर। फिर नेक्स्ट 12 वो डिफरेंट के हो सकते हैं। सर ऐसे करके ऐसे करके 8 कितने डिफरेंट होंगे? मंथ आएंगे। 8 डिफरेंट मंथ के होंगे। ठीक है, मतलब 8 पीपल ऐसे हैं जो डिफरेंट मंथ के हैं। अब बचे यस कितने? सर। 4। यस सर। इन 4 को किस मंथ में लेके जाओगे? 12 में से कोई भी 4 में ले सकते हैं, कोई 3 में ले सकते हैं, कोई 2 में ले सकते हैं, या किसी एक मंथ में यस। भी ले सकते हैं। तो कितने पीपल ऐसे हैं मिनिमम जो सेम मंथ बॉर्न होंगे? कम से कम सर वो जो 9 86 पीपल हम लोग को पहले मिले थे वो सब। 96। हाँ 96 पीपल। 96 जो हैं, अगर आपके पास 96 पीपल हैं तो उस केस में 8 पीपल जो होंगे वो सेम मंथ बॉर्न होंगे। यस सर। यहां तक तो क्लियर है। यस सर। अब जो रिमेनिंग 4 हैं वो भी तो किसी न किसी मंथ के होंगे। वो तो रेस्ट 4 मंथ्स के होंगे ना, उसके बाद तो उनका नंबर बढ़ जाएगा। हमें तो एटलीस्ट चाहिए था, वो तो 8 ही होने चाहिए। नहीं नहीं, आप समझे नहीं बात को, अभी भी कंफ्यूजन है। देखो, 96 को हमने कंसिडर कर लिया कि 8 लोग ऐसे हैं जो सेम मंथ बॉर्न हैं, यस सर। है ना, क्योंकि एक साल में हमारे पास 12 मंथ होते हैं। यस सर। ठीक है, अब जो रिमेनिंग 4 हैं वो भी तो किसी न किसी मंथ के होंगे, और ये मंथ क्या होगा? इन 12 में से ही तो कोई एक होगा। यस सर। ओके, तो मिनिमम पीपल कितने हैं जो सेम मंथ बॉर्न हैं? तो दैट विल बी 8। मिनिमम 9 ना। वाई यू आर सेइंग 8? अच्छा चलो ऐसे समझो, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। लुक एट दिस। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये मान लो आपका हो गया जनवरी, ठीक है। ये हो गया फरवरी, जस्ट वेट, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मम्मी नहीं आ
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, लेट अस से दिस। ओके, तो ये 12 मंथ्स हो गए। अभी देखो आप क्या करोगे, 8 जो है इस मंथ के होंगे, 8 जो है इस मंथ के होंगे, 8 जो है इस मंथ के होंगे एट फार, ठीक है, एट पर एक्सटेंट। तो ये हमने ले लिया, तो ये टोटल कितने 96 पीपल हो गए। जैसे ही 97th पर्सन आएगा वो किसी न किसी इन्हीं में से तो एक मंथ में जाएगा। तो कितने पर्सन ऐसे हैं जो सेम मंथ बॉर्न हैं? अभी तक तो 8। अभी तक 8 है, 96 है तो, यस सर। लेकिन 96 से जब ज्यादा होगा तब कितने पर्सन होंगे जो सेम मंथ में बॉर्न होंगे? सर हम एटलीस्ट ढूंढ रहे हैं ना, तो एटलीस्ट मतलब वो 96 के बाद जो 4 है वो इन चारों में से किसी में जाएंगे। पर अगर हम एक एक भी डालेंगे तो फिर वो तो 9 पीपल्स हो जाएंगे सेम मंथ बॉर्न। हमें एटलीस्ट चाहिए, तो हम 8 क्यों नहीं ले रहे हैं? एट नहीं नहीं, मोस्ट कहता तो क्या होता? क्या? अगर कहता कि मतलब एट मोस्ट कितने लोग सेम मंथ में बॉर्न है, तो वो नहीं, एट मोस्ट अगर पूछा जाएगा तब तो उस केस में हमारे पास 12 आएगा। 12 हो सकता है, क्योंकि एट यस मोस्ट तो सर, हम डिसाइड नहीं क्योंकि कर हम सकते। एक ही मंथ में चारों को डाल हाँ, देंगे। तो यस। उसी तरह जो मतलब मेरे पास 4 बचे हैं, उनको अगर हम अलग अलग मंथ में डालेंगे तो हाँ, भी 4 मंथ ऐसे आ जाएंगे जिसमें 9 स्टूडेंट्स होंगे। तो हो गया ना, फिर यहाँ पे आपकी एक एक को भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 9 तो हो ही जाएंगे ना। पर वो एटलीस्ट पूछ रहा है ना, तो हमारे पास अभी 8 वाली तो कैटेगरी बाकी है जिसमें रिपीटेड मतलब सेम मंथ बॉन्ड पीपल्स हैं। तो हम 9 पे क्यों जा रहे हैं? अगर मतलब वही 9 की जगह एक मंथ कम कर दिया जाए, लाइक 4 स्टूडेंट्स बचे थे उनमें से किसी 2 को एक में डाल दे तो एक में 10 हो जाएगा। हाँ, या फिर 2 ही मंथ में डाल दे तो फिर एक में 11 हो जाएंगे, 12 हो देखो जाएंगे। देखो, जो 4 बचे हैं उन चारों को हम एक साथ भी प्लेस कर सकते हैं, तो एक साथ प्लेस करोगे तो वो 12 हो जाएंगे, ठीक एट है। मोस्ट कंडीशन। लेकिन हाँ, एटमोस्ट कंडीशन, लेकिन एटलीस्ट कंडीशन तो वही होगी ना कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके करें। जैसे मैंने पिजन होल वाला बताया, पिजन्स वाला बताया, कि अगर आपके पास 9 बॉक्सेज हैं, ठीक है, और 10 पिजन्स हैं, तो उस केस में एक बॉक्स में क्या होगा, आपका 2 पिजन्स होंगे। लेकिन ऐसे ही अगर हमारे पास 11 पिजन्स हैं, तो उस केस में क्या होगा, एक बॉक्स में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 3 हो सकते हैं। 3 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो 2 एक्स्ट्रा हैं उन दोनों को ही हम सेम बॉक्स में प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास 100 पीपल हैं तो उस केस में 9 पीपल ऐसे होंगे जो सेम मंथ बॉर्न होंगे। 8 8 तो 8 तो 96 पे भी हो जाएंगे ना। अगर हमारे यस सर। पास, देखो, सपोज इसको आप ऐसे समझो, अगर हमारे पास एक से लेके मतलब जीरो से ले 1 से लेके 12 तक पीपल हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, देयर विल बी 1 पीपल, मिनिमम 1 पीपल हु इज बॉर्न इन 1 मंथ, ठीक है। तो उसकी तो बात ही नहीं करते। लेकिन जैसे ही ये 13 होगा और लेस देन इक्वल्स टू 24 है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट 2 पीपल आर बॉर्न इन सेम मंथ। ओके, व्हाट इज दिस कंडीशन रिप्रेजेंटिंग? 13 to 24, at least 2 people are born in same month। 13 होगा तब भी और 24 होगा तब भी, या इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो। ऐसे ही 25 से लेके 36 तक अगर हमारे पास पर्सन हैं, तो उस केस में क्या होगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट मिनिमम 3 पीपल आर बॉर्न इन सेम मंथ। गॉट द पॉइंट? यस, शुभांशी।
यस सर। अगर हम 13 पीपल ले रहे हैं तब भी हम बोल रहे हैं कि मिनिमम 2 लोग ऐसे हैं जो सेम मंथ बॉर्न हैं, और अगर हम 24 पीपल ले रहे हैं तब भी हम बोल रहे हैं कि मिनिमम 2 पीपल ऐसे हैं जो सेम मंथ बॉर्न है, क्योंकि एट एक्सटेंट ये हो सकता है कि सभी का डिफरेंट डिफरेंट मंथ हो, तो 12 का डिफरेंट होगा और अगले 12 का डिफरेंट होगा, तो इसलिए एक मंथ के कितने हो जाएंगे, 2 लोग। लेकिन जैसे ही 25th पीपल आएगा तो इट विल एंश्योर दैट देयर आर 3 पीपल हु आर born in same month. Got the point? तो यस सर। ऐसे ही अगर हम 37 से लेके 48 तक लेते हैं तो देयर विल बी 4 पीपल हु आर born in same month. ओके, इन द सेम वे, तो ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो 97 से लेके 108 तक अगर हमारे पास पीपल हैं तो इट विल एंश्योर दैट 9 पीपल आर देयर हु आर born इन सेम मंथ. गॉट द पॉइंट? जैसे यहाँ पे है 37 से लेके 48 में हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि 4 पीपल ऐसे हैं जो सेम मंथ के. क्यों? क्योंकि 37/12 का हम अपर बाउंड ले रहे हैं. अगर हम 37 को 12 से डिवाइड करें तो इसका अपर बाउंड क्या होगा, 13, सॉरी क्या होगा, 4, क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग होगा और 3 पॉइंट समथिंग का अपर बाउंड क्या हो गया, 4. ऐसे ही 100/12 का अपर बाउंड ले रहे हैं. अपर बाउंड क्यों ले रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि उस केस में हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि 9 पीपल ऐसे हैं जो सेम मंथ बॉर्न है. आप इस मिनिमम वर्ड से कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इस मिनिमम से कंफ्यूज ना हो. ये मिनिमम उस चीज को डिनोट कर रहा है जो सेम मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. ये मिनिमम ये नहीं बता रहा है कि नंबर ऑफ पीपल, जैसे आप कहो कि नहीं इसमें 9 है, इसमें 9 है, लेकिन इसमें तो 8 है, तो मिनिमम तो 8 लेना चाहिए. तो वो चीज नहीं हम बोल रहे हैं, क्योंकि 8 तो तब भी हो सकता था जब 96 होता. गॉट द पॉइंट? यस सर। लेकिन 96 से ज्यादा होने से हम इंफॉर्मेशन, जो कंफर्म इंफॉर्मेशन है, वो क्या दे पा रहे हैं, तो वो हम ये दे पा रहे हैं कि देयर आर 9 पीपल हु आर born इन सेम मंथ, क्योंकि 8 तो 96 तक हो ही जाएंगे. ओके, गॉट द पॉइंट? तो यस सर। हमेशा हम अपर बाउंड की बात कर रहे हैं. जैसे अगर आप बोल रहे हो कि कोई नंबर जो है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 100, तो 100 जो है 10 से भी छोटा है, सॉरी 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 10 से भी बड़ा है, 20 से भी बड़ा है, और 99 से भी बड़ा है. गॉट द पॉइंट? लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, 99 की, न कि 10 की और 20 की. क्यों? क्योंकि 99 बोलने का मतलब ऑलरेडी वी आर इंक्लूडिंग 10 एंड 20. तो सेम लॉजिक इज अप्लाइंग ओवर हियर ऑल्सो, कि अगर हम 9 बोल रहे हैं तो 8 तो इंक्लूसिव हो गया. ओके, अगर आप बोल रहे हो कि 9 लोग जो ऐसे ऐसे हैं जिनका सेम मंथ में बॉर्न है, इसका मतलब क्या हो गया, 8 तो है ही, 8 के बाद ही तो 9 आया. ओके, गॉट द पॉइंट? यस, एनीवन हैविंग डाउट्स, यू कैन आस्क. मेरा डाउट क्लियर हो गया। शशांक, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एट मोस्ट. इस प्रॉब्लम में एटलीस्ट पूछा गया है, इसीलिए हम हमेशा एटलीस्ट की ही बात करते हैं. और वर्तिका, ये जो रिजल्ट है ये हमने डिफाइन किया है. इसको कैसे डिफाइन किया ये आपको आगे की प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर हियर, तो ये आपको आगे की प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगा, व्हाई वी आर डिफाइनिंग दिस. ठीक है, तो इसको हम अभी इसके अगले प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे. ये जो रिजल्ट है, अभी मैं केवल इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ. अगर इसमें किसी को डाउट है तो बताओ. ये वाला स्टेटमेंट मैं अगली प्रॉब्लम में लूंगा तो वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये कैसे आया. ठीक है, इस प्रॉब्लम में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो. दिस, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे अंडरस्टूड कर सकते हैं
कि अगर आपके पास 13 लोग हैं तो आप ये गारंटी दे सकते हो कि 2 लोग ऐसे होंगे जो सेम मंथ बॉर्न होंगे। ऐसे ही अगर आपके पास 25 पर्सन है तो उस केस में आप ये गारंटी दे सकते हो कि 3 लोग ऐसे हैं जिनका सेम मंथ में बॉर्न होगा। ऐसे ही अगर आपके पास 97 पीपल हैं तो आप ये इस बात की गारंटी दे सकते हो कि 9 पीपल जो हैं वो सेम मंथ बॉर्न होंगे। तो 97 से ज्यादा 100 है, लेकिन ये 108 से कम है तो इसलिए 9 ही रहेगा। तो 100 है तब भी 9 होगा, 97 रहता तब भी 9 होता, 98 रहता तब भी 9 होता, और 107 रहता, 108 रहता तब भी 9 ही होता। ठीक है, तो 97 से लेके 108 तक कोई भी वैल्यू हो, देयर विल बी 9 पीपल हु आर born in same. I hope it is clear to you. And if you are having any doubts, you can just drop me a message. Okay, I will reply you. And we are stopping here. We will continue this topic in the next class. Okay. Thank you all. We will meet again in the next class.